So this is your February revolution in Petrograd. Okay. So in this revolution, what happened? It was winter in 1927. 1917. Winter season was there. Understand? Because in February month there is winter season. Again. So what happened there? Means the capital conditions in the capital Petrograd was grim. You will try to understand Petrograd. Okay? Petrograd. Petrograd is German word. German word. Understand? And this name was given to Saint Petersburg. ये सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम था. दिस वाज पेट्रोग्राड. इट वाज जर्मन. व्हाई दिस नेम केम? बिकॉज ऑफ ज़ारीना अलेक्जेंड्रिया हु वाज ओरिजिन ऑफ जर्मनी. अंडरस्टैंड? शी गेव दिस नेम पेट्रोग्राड. अंडरस्टैंड? एंड दिस वाज द नेम ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग. ओके. So we will see here the city was very in grim condition. The workers, quarters and factories were located on the right bank of river Neva. जैसे ये एक river Neva है. This was river Neva. ठीक है? River Neva. तो यहाँ पे जो है वर्कर्स क्वार्टर्स बने हुए हैं. फैक्ट्री वर्कर्स के क्वार्टर्स बने हुए थे. मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स में भी, सिंगल स्टोरीड बिल्डिंग्स में भी. Understand? They were workers' quarter on the bank, on the right side of the bank of river Neva. Okay. So what was there? And on the left bank were the fashionable areas of Winter Palace. This is right. ठीक है? This is right and this is left. ठीक है? यहाँ पे आपके फैशनेबल एरिया, यहीं पे विंटर पैलेस था. विंटर पैलेस. ठीक है? यहाँ पे आपका विंटर पैलेस बना हुआ है. क्लियर? दिस वाज विंटर पैलेस. राइट? विंटर पैलेस वाज द रेजिडेंस ऑफ Tsar Nicholas II and Tsarina Alexandria. This was royal residence. Understand? So we have seen here, that is official buildings were also built there. Okay? And Duma. Here official buildings were there on the right bank. Okay? Multi-storied buildings. And here Duma, where assembly, Russian parliament, it had to do its meeting on the right bank of this river Neva. Understand? This was the condition of Russia in 1917. Okay? So what we had seen, that is there was food shortage and deeply felt in the workers' quarter. Okay? There was food shortage. Food shortage was seen. Okay? Because of severe winter condition, very harsh winter condition, harvest was collapsed. Understand? There was no you can say proper production of food grains. That's why there was shortage. Clear? And this felt workers, and the winter was very cold, and you can say that their occupational exceptional frost and heavy snowfall was there. Frost means frost, ओस जो पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं शीत पड़ता है इन हिंदी. ठीक है? दैट इज फ्रॉस्ट. एंड स्नोफॉल वेरी वेल. है कि नहीं? जो स्नोफॉल करता है, यू हैव सीन इन मूवीज, पिक्चर्स. है कि नहीं? न्यूज़पेपर्स. राइट? तो that was very miserable condition, and parliamentarians wishing to preserve elected government. ठीक है? And they were opposed to the Tsar's desire to dissolve the Duma. जार ने उसी समय ड्यूमा को डिसॉल्व कर दिया था, खत्म कर दिया था. Because he found that influence of royal family that was weakening day by day. ठीक है? It was weakened day by day. Understand? That's why to continue his influence, he dismissed Duma. Understand? So that his supremacy could be maintained, his dominance could be maintained. Isn't it? So on 22 February, a lockout took place in the factory at right bank. ये फैक्ट्री है.
इन 1920 फरवरी, ठीक है, नहीं, इन फरवरी देयर वाज लॉक्ड अप, फैक्ट्रीज वर लॉक्ड अप, तालाबंदी हो गई फैक्ट्रीज में, उन्होंने लॉक कर दिया, ड्यूमा क्यों सस्पेंड किया गया, ठीक है, जितने भी हमारे पॉलिटिकल कंडीशंस अराइज एंड द फैक्ट्री वाज लॉक्ड ऑन 22 फरवरी, ठीक है, ये फरवरी 22 था, 22 फरवरी को सारा का सारा जो है हमारा ये लॉकड अप हो गया, फैक्ट्रीज ताले लग गए, ठीक है, एंड वर्कर्स दे केम ऑन इन स्ट्रीट, सारे वर्कर्स हमारे स्ट्रीट में आ गए, ठीक है, राइट बैंक पे था, एंड द नेक्स्ट डे 50 फैक्ट्रीज, जितने भी वर्कर्स थे 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स ऑफ 50 फैक्ट्रीज केम ऑन स्ट्राइक, ठीक है, केम ऑन स्ट्राइक, 50 फैक्ट्री के वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया, ठीक है, एंड दे केम इन स्ट्रीट एंड व्हाट हैपेंड मीन्स मेनी फैक्ट्रीज वुमेन दे पार्टिसिपेटेड, सारे जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स हैं सारे के सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, और इसीलिए इस दिन को हम लोग क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है, इसी स्ट्राइक को हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे कहते हैं, ऑन 22 फरवरी 1917, ठीक है, 22 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है, ये क्वेश्चन इन मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इट कम्स, ठीक है, एंड यू कैन से इन योर एग्जाम इट मे ऑल्सो कम, ठीक है, तो ये हमारा क्या है 22 फरवरी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है हर साल पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, तो इसका हिस्ट्री क्या था, इट वाज बिकॉज ऑफ strike that was held by 50 more than 55 factory workers in which women also participated. This was the first movement in which women participated, understand, in large scale. That's why their participation is marked as International Women's Day. Clear? So this is very important thing. Along with this, what happened? Demonstrating workers crossed from factory quarters to the center of the capital, ठीक है, और यहाँ पे क्या था कि एक वर्ड है नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट, ठीक है, नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट्स, क्लियर, नेवेस्की, दिस इज रशियन वर्ड, नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है, ये क्या था वहां पे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस दैट इज सेंटर ऑफ द कैपिटल, ठीक है, दिस इज सेंटर, ये जगह जो है सेंटर ऑफ द कैपिटल ऑफ पेट्रोग्राड, ठीक है, पेट्रोग्राड का जो कैपिटल का सेंटर, ठीक है, दैट इज फॉर नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट्स, इस प्लेस का नाम था, यहीं पे सारे लोग कलेक्ट हुए, अंडरस्टैंड, ऑल फैक्ट्री वर्कर्स दे वर कलेक्टेड एट दिस प्लेस, ठीक है, एंड एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वाज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट, इस समय कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का इसमें एंगेजमेंट नहीं है, नो पॉलिटिकल पार्टी इज एंगेज्ड इन सच एक्टिविटी, इजंट इट, एंड व्हाट हैपेंड, तो एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स, ठीक है, ये जो आपके फैशनेबल क्वार्टर्स है चारों तरफ वर्कर्स ने इसको घेर लिया, इस बिल्डिंग को, अंडरस्टैंड, इट वाज टोटली सराउंडेड बाय पीपल, दे आर फैशनेबल बिल्डिंग्स एंड वर्कर क्वार्टर्स, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो द गवर्नमेंट इम्पोज्ड कर्फ्यू एंड दिस कॉज्ड अ कर्फ्यू इन दिस पोजीशन, ठीक है, गवर्नमेंट इम्पोज्ड कर्फ्यू, ओके, गवर्नमेंट इम्पोज्ड कर्फ्यू हियर, राइट, and this created a impact,
ठीक है। अब क्या हुआ, टर्बुलेंट केस यहाँ भी क्रिएट हो जाएगा, हलचल मच जाएगी, भाई गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया है कि नहीं। अब क्या करें, लोगों के अंदर एक क्या हुआ, एक फियर कंडीशन डेवलप हो गया, ठीक है। एंड डेमोन्स्ट्रेशन डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग बट दे केम बैक ऑन 24th एंड 25th। 22 तारीख को ये केस हुआ, दे वर डिस्पर्स्ड बाय फोर्स, कर्फ्यू हुआ, उसमें सोल्जर्स ने जो है इनको भगा दिया किसी तरह से, बट दे अगेन केम ऑन 24th एंड 25th फरवरी, फिर दोबारा आ गए। एक बार तो भगा दिया गया, ठीक है, कर्फ्यू इम्पोज करके, लेकिन फिर ये लोग कलेक्ट हो गए, राइट। अब इस तरीके से वहाँ एक सिचुएशन बन गई एंड द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। कैवलरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। पुलिस यू नो वेरी वेल बट यू डोंट नो कैवलरी, है ना। कैवलरी मीन्स सोल्जर्स हु यूज टू कम ऑन हॉर्स बैक, ठीक है, घोड़े पे बैठ करके जो सोल्जर्स आते थे, दे वर नोन एज कैवलरी। द ट्रूप विच यूज्ड हॉर्स बैक, ठीक है, दे हैड टू कम ऑन द हॉर्स बैक, घोड़े पे बैठ के सोल्जर्स रहते थे। दे हैड केप्ट हेलमेट ऑन देयर हेड, isn't it, with a revolver on their back, clear, and a sword, and in one hand they had hunter, ठीक है, एक हाथ में हंटर होता है, right. These troops, they were called cavalry, right. So it was called there and they were dispersed, peoples were dispersed. So on Sunday 25 February the government suspended Duma, ठीक है, 25th फरवरी को, ठीक है, गवर्नमेंट सस्पेंडेड ड्यूमा, ठीक है। ड्यूमा क्या था, हु विल टेल द नेम ऑफ ड्यूमा। ड्यूमा कौन था, कोई आदमी नहीं था, रशियन पार्लियामेंट, है कि नहीं। गवर्नमेंट ने रशियन पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया 25 को, उन्हें लगा कि इन्हीं लोगों की कहने पे ये हो रहा है, राइट। तो ये क्रिएट हुआ हमारा कंडीशन एंड ऑन संडे क्या हुआ, पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर, डेमोन्स्ट्रेटेड रिटर्न टू फोर्स इन द स्ट्रीट्स ऑन द लेफ्ट बैंक ऑन 26। अब ड्यूमा सस्पेंड करने के बाद ये सारे डेमोन्स्ट्रेशन अब लेफ्ट बैंक की तरफ आ गए, इधर इस तरह ड्यूमा को घेर लिया इन्होंने, ठीक है। सारे के सारे लोगों ने दे सराउंडेड दिस प्लेस, इजंट इट। हाँ, अभी नहीं, बाद में आप तो गवर्नमेंट सराउंडेड दीज पीपल्स, दे केम ऑन लेफ्ट बैंक। अब देखा कि यहाँ कर्फ्यू लग गया, कैवलरी आ गई है, अब उन्होंने देखा ड्यूमा सस्पेंड हुआ है, तो इन्होंने इसको पूरा एरिया घेरना शुरू कर दिया, विंटर पैलेस एंड ड्यूमा, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ क्या कंडीशन बनी कि ऑन 27 द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड, ठीक है, 27 फरवरी, ठीक है, यहीं पे पुलिस क्वार्टर्स बने हुए थे, उसको भी इन्होंने घेर लिया, ठीक है। पुलिस क्वार्टर्स में भी घुसने लगे, वहाँ के लोगों को जो है उन्होंने कहा वाई यू आर यू कैन से मेकिंग, वाई यू आर सपोर्टिंग मोनार्ची ऑर्डर्स। उनको लोगों ने कहना शुरू किया कि आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है, वाई यू आर सप्रेसिंग अस, वी आर वी वांट अ रेवोल्यूशन, ठीक है, वी आर गोइंग टू फ्री this country from monarchy rule, why you are supporting monarchy rule, they started convincing them, ठीक है। that was the matter of ransack, ठीक है। and in this way you have got उसी में क्या हुआ कि हाँ, गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल दिस सिचुएशन, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स। उसी टाइम जो है ऑर्डर कर दिया गया, उनका जो हेड थे, आर्मी हेड, ही ऑर्डर्ड दैट यू शुड ओपन फायर ऑन देम, ठीक है, बट कैवलरी ने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने कहा वी विल नॉट फायर ऑन दिस क्राउड, ठीक है, बिकॉज दे आर पीपल फ्रॉम आवर ओन कंट्री, दे आर नॉट फॉरेनर्स, दे आर नॉट रेफ्यूजीज, अंडरस्टैंड, दे बिलोंग्स टू आवर ओन कंट्री, दे आर डूइंग मूवमेंट, वाई शैल आई शूट देम,
हम इनको क्यों गोली मारे? दे आर आवर फैमिली मेंबर्स, है कि नहीं? दे बिलोंग्स टू आवर लोकेलिटी, वाई शुड आई शूट देम? उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है। तो उसके जनरल ने उस कैवलरी सोल्जर को शॉट कर दिया, उसको गोली मार दी, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि however the cavalry refused to fire on the Constitution, an officer was shot at barracks of a regiment, and what happened? 3 other regiments mutinied, voting to join striking workers. अब क्या हुआ इस इंसिडेंट्स के बाद और भी जितने भी रेजिमेंट्स थे सब ने विद्रोह कर दिया। म्यूटिनी टुक प्लेस। म्यूटिनी का मतलब क्या होता है? दे हैड रिवोल्टेड अगेंस्ट मोनार्ची रूल। उन्होंने कह दिया कि नाउ फ्रॉम टुडे वी विल नॉट ओबे द ऑर्डर्स ऑफ मोनार्ची रूल। अंडरस्टैंड? एकदम टोटली रिफ्यूज कर दिया। एंड दे सपोर्टेड द स्ट्राइकिंग पीपल। दोज पीपल हु हैड स्टार्टेड स्ट्राइकिंग मीन्स दे वर सपोर्टेड बाय दीज रेजिमेंट पीपल, ठीक है। And this, you can say movement was successful, and by the evening, soldiers and striking workers had gathered to form a Soviet or council, ठीक है। और उसी दिन शाम को 27 फरवरी को ही शाम को एक नया चीज बना, सोवियत, ठीक है। A new term was formed, सोवियत और काउंसिल। इसी को हमने सोवियत या काउंसिल नाम दिया। It was formed on 27 फरवरी, ठीक है। अब आपका जो है ड्यूमा खत्म हो गया, ठीक है। एंड जो हमारा प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो खत्म हो गई। अब एक न्यू काउंसिल वाज फॉर्म्ड, इट्स नेम वाज सोवियत, दैट इज काउंसिल। अंडरस्टैंड? और ये किसकी वजह से, किसकी उससे बना? ये जितने भी आपके सोल्जर्स थे और स्ट्राइकिंग वर्कर्स, ठीक है, दे फॉर्म दिस थिंग। एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, एंड जहाँ पे ड्यूमा की मीटिंग होती थी वहीं पे अब ये सोवियत लोगों की मीटिंग होने लगी। समझ में आ रहा है? पहले वहाँ जो थे क्या कहते हैं सब प्रोविजनल गवर्नमेंट्स की मीटिंग होती थी, अब वो ख़त्म हो गई उसको, क्योंकि लुइस उसने ज़ार निकोलस सेकंड ने उसको डिसमिस कर दिया था। अब उसकी जगह ये जो नया सोवियत बना उनकी मीटिंग उसी पैलेस में होती है। क्लियर? तो ये चीज़ें चलने लगी। एंड द वेरी नेक्स्ट डे डेलीगेशन वेंट टू सी द ज़ार निकोलस सेकंड। एक टीम गई इनकी सोवियत्स की, और मतलब जो है ज़ार निकोलस सेकंड को उन्होंने एडवाइस किया कि यू शुड लीव योर थ्रोन, आप अपनी इच्छा से छोड़ दीजिए कुर्सी, ठीक है, और रिज़ाइन कर जाइए, ठीक है। उनको सलाह दिया मिलिट्री ऑफिसर्स ने, अदरवाइज वी हैव टू टेक एक्शन, ठीक है। You are a monarchy ruler, you are prestigious person, we don't want to suit you like common people, है कि नहीं? उन्होंने कहा कॉमन पीपल की तरह आपके साथ ट्रीट नहीं कर सकते, हम आपको एडवाइस कर रहे हैं कि यू लीव योर पोजीशन, isn't it? So in this manner what happened, the military commanders advised him to abdicate, the word abdicate, ठीक है। abdicate means to leave the power, ठीक है, by own will, अपनी इच्छा से आप अपनी पावर छोड़ दीजिए, दैट इज कॉल्ड एब्डिकेशन, ठीक है। सो ज़ार निकोलस सेकंड वाज एब्डिकेटेड, ठीक है, मीन्स ही वाज एडवाइज्ड बाय द हेड्स ऑफ सोवियट्स और काउंसिल, ठीक है, टू लीव द पोजीशन, and they had means he had they because another government was going to be formed, isn't it? So he followed their advice and abdicated on 2 March. तो 2 मार्च को जो है on 2 मार्च 1917, ठीक है, ज़ार निकोलस सेकंड was abdicated, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। ऑन 2 मार्च 1917 ज़ार निकोलस सेकंड ही वाज टोटली एब्डिकेटेड, अंडरस्टैंड? सो दिस वाज द केस, एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर हिज एब्डिकेशन, राइट? लीडर्स ऑफ सोवियत के जितने लीडर्स थे दे हैड अ मीटिंग एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। अब यहाँ पे क्या हुई, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई, अंडरस्टैंड? प्रोविजनल गवर्नमेंट स्टार्टेड रनिंग इन रसिया,
क्लियर? आफ्टर 2 मार्च 1917 एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी. हु वर मेंबर? सोवियत्स वर द मेंबर. ठीक है, उसके पार्लियामेंट के जो मेंबर्स कौन हुए? सोवियत, ये जो काउंसिल बनी थी उसके मेंबर्स हुए. क्लियर? सो इट क्रिएटेड they decided the future of Russia and constituent assembly was formed, elected on the basis of universal adult suffrage, and Petrograd had led the February Revolution. ठीक है, तो ये फेब्रुवरी रेवोल्यूशन किसने लीड किया? पेट्रोग्राड. ठीक है, पेट्रोग्राड सोवियत उसको कहा गया. led February Revolution. Understand? Petrograd Soviets means this council, Soviet. Understand? It was formed in Petrograd. Petrograd में फॉर्म हुआ. Petrograd was the new name of Saint Petersburg. ठीक है? And here Petrograd Soviets, they had started, means they completed this revolution. February Revolution किसने complete किया? Question आएगा. So what will you say? Petrograd Soviets. Okay? अब यहाँ पे देखो women in the February Revolution. What was the contribution of women in February Revolution? Very important thing and very inspirational thing. इसी वजह से because of the contribution of women in February Revolution, Women's International Day is celebrated. ठीक है? Contribution of women ठीक है, in February Revolution. Very important line. Clear? In this one, there was incidents, means women workers often inspired their male co-workers. ये जो मेल co-workers थी उनको प्रेरित करती थी, इंस्पायर करती थी वुमेन वर्कर्स. ठीक है, यू शुड स्ट्रगल अगेंस्ट मोनार्ची रूल. ठीक है, उनको एक तरीके से उनको एक मोटिवेशन वाज गिवन टू सच पीपल. अंडरस्टैंड? हु वर मेल वर्कर्स. ठीक है, एंड एट द लॉरेंज टेलीफोन फैक्ट्री, वहीं पे एक टेलीफोन फैक्ट्री क्या थी, उसका क्या नाम था? लॉरेंज टेलीफोन फैक्ट्री. ठीक है, देयर वाज लॉरेंज टेलीफोन फैक्ट्री, है ना. इस लॉरेंज टेलीफोन फैक्ट्री में ये सारे केसेस हुए एंड इसमें एक थी मार्फा वैसिलोवा. ठीक है, ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली कॉल्ड सक्सेसफुल स्ट्राइक. मार्फा वैसिलोवा, ठीक है, इसका नाम था मार्फा वैसिलोवा. ठीक है, इसने अकेले दम पे पूरी स्ट्राइक जो है उसने जो है प्ले किया, रोल प्ले किया. ठीक है, मार्फा वैसिलोवा, शी कॉल्ड अ सक्सेसफुल स्ट्राइक. उसके एक बार कहने पे सारे वर्कर्स, चाहे मेल वर्कर्स और फीमेल वर्कर्स, दे स्टॉप्ड वर्किंग. दे केम इन लॉन एंड दे गेदर्ड. अंडरस्टैंड? Means she was so influential lady that on her only one call people stopped working. ठीक है, तो इससे आप देख सकते हैं कि उसमें वुमेन का कंट्रीब्यूशन कितना अच्छा है, isn't it? तो इसमें क्या था कि already that morning in celebration of Women's Day, ठीक है, women workers had presented red bows to the man. ठीक है, women workers ने जो है एक तरीके से मैन एंड वुमेन दोनों लोगों ने शपथ लिया. ठीक है, कि फ्रॉम टुडे वी विल नॉट ओबे द ऑर्डर्स, isn't it? Because we have to do all these action. Then Martha Vasilova, a milling machine operator, stopped work. ठीक है, अब उन्होंने काम बंद किया. She was milling operator. मिलिंग ऑपरेटर कौन होते हैं? जो मशीन चलाते हैं. Who operate a machine, they are known as milling operator. ठीक है, तो इस ऑपरेटर ने क्या किया? वर्क करना बंद कर दिया. स्टॉप वर्क एंड डिक्लेयर्ड ऑन स्ट्राइक एंड द वर्कर्स ऑन द फ्लोर वर रेडी टू सपोर्ट हर. जितने भी उसके नीचे के वर्कर्स थे सब ने उसको सपोर्ट किया. ठीक है, एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, एक तरीके से जो है पूरा मैनेजमेंट जो था वो एकदम उसको जो फोरमैन ने इन्फॉर्म किया मैनेजमेंट को. ठीक है, तो मैनेजमेंट केम विद देयर मेंबर्स. ठीक है, और उन्होंने क्या किया,
द फोरमैन इन्फॉर्म, हाँ गो बैक, उन्होंने क्या किया कि एक ब्रेड का लोफ, क्योंकि सारे वर्कर्स ने कुछ नहीं खाया था सुबह से, ठीक है, तो स्पेशली मार्फा वैसिलोवा के कहने पे स्ट्राइक हुआ। तो फोरमैन जब मैनेजमेंट के साथ आया, व्हाट ही डिड, he gave a loaf of bread to Marfa Vasilova and told that you eat this bread and stop this strike, ठीक है। तो मार्फा वैसिलोवा ने क्या किया, उस लोफ ऑफ ब्रेड को फेंक दिया उठा के, है कि नहीं। उसने क्या किया, she took the bread but refused to go back to work, उसने ब्रेड तो ले लिया लेकिन वर्क पे जाने से मना कर दिया। एंड द एडमिनिस्ट्रेटर आस्क्ड हर अगेन व्हाई शी रिफ्यूज्ड, तो उसने कहा कि जब तक हमारे वर्कर्स सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं कैसे ब्रेड अकेले खा सकती हूँ, हमारे वर्कर्स को तो एक भी फूड ग्रेड नहीं मिला, ठीक है। उनके सामने व्हाई शुड आई टेक दिस लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है। इसी डे के, इसी वजह से जो है, इसी इंसिडेंस को जो है वुमेन्स वर्कर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंस, ठीक है। ये चीज़ें जो है आपको यू शुड नो फ्रॉम हिस्ट्री, तो हिस्ट्री इसीलिए पढ़ी जाती है, ठीक है। एंड वुमेन वर्कर्स फ्रॉम अनदर सेक्शन ऑफ द फैक्ट्री गेदर्ड अराउंड मार्फिया इन सपोर्ट एंड ग्रेजुअली ऑल द वुमेन फॉर सीज्ड वर्किंग। इसी एक्टिविटी के बाद जब मार्फा वैसिलोवा ने जो है उसको रिटर्न कर दिया, तो जितने भी पूरे फैक्ट्री वर्कर्स थे उनके अंदर एक न्यू स्पिरिट आ गया, है कि नहीं। उन्होंने कहा कि जब ये लेडी जो है क्या कहते हैं, सी हैज़ नो ग्रीड, सी हैज़ अ कॉन्साइंस ऑफ सेक्रीफाइस, ठीक है, सी हैज़ रिफ्यूज दिस ब्रेड, इट मीन्स सी इज वर्किंग फॉर अस, सो वी शुड सपोर्ट हर, ठीक है। एंड ऑल पीपल्स ऑफ पेट्रोग्राड दे सपोर्टेड हर। इसी इंसिडेंस को जो है 22 फरवरी 1917 को ये इंसिडेंस हुआ था, एंड दैट्स व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड एज वुमेन्स वर्कर्स डे, ठीक है। सबको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, टुमारो वी विल स्टडी आफ्टर फरवरी, फरवरी के बाद क्या हुआ था, ठीक है।